Today our class is 12th class. Our subject is geology. As you know, we are discussing the earthquakes. What is an earthquake? Earthquake is the shaking or vibration of earth due to the rapid release of energy deep inside the earth. So, in this class, we will discuss causes of earthquake. What are the main causes of earthquakes? There are three main causes of earthquakes. Number one is tectonic earthquakes, number second volcanic earthquakes, and the third one is anthropogenic earthquakes. Now in this class, we will try to understand tectonic type of earthquakes. How due to the tectonic cause earthquakes occur. The main cause of earthquake is the sudden movements along faults and are therefore called tectonic earthquakes. The concept of possible mode of origin of tectonic earthquakes is known as elastic rebound theory. So, main possible mode of origin of these tectonic types of earthquakes. The concept regarding this is elastic rebound theory. According to the elastic rebound theory, rocks behave under suitable conditions elastically and plastically. So, as you know, elastically means which stretch rocks behave or they stretch like elastic. And plastically, as you know, plastics are malleable. We can make different shapes. So, the rocks behave as such, they are changed into different shapes deep inside the earth due to heat and temperature. And then ruptures occur due to this elastically and plastically nature. Ruptures occurs in the rocks in response to the stresses accumulated for tens of years over the surface, due to the stresses accumulated over tens of years over the surfaces, the ruptured rocks then try to retain elastically their original position, with the result causing shaking of earth. Thus, earthquakes result from sudden yielding to strain produced on rocks by accumulating stresses. So, these rocks or these earthquakes from the sudden yielding of strain produced due to stresses which are accumulating stresses on these rocks. So this causes the breaking down of rocks and produces relative displacement of rocks. For example, we give an example to such faulting causes shaking because displacement of rocks takes place. As you know, there are three types of faulting: normal faulting, reverse faulting, or strike slip faulting. So these are the different types of faulting which already exists on the tectonic plates due to different changes. So this faulting causes shaking. Different types of faulting causes shaking of earth or displacement of rocks. If we try to understand in a way what are टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स क्या होती है, किस तरह की अर्थक्वेक्स होती है? टेक्टोनिक ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट करने की वजह से क्या होती है? इसमें मेन काज जो अर्थक्वेक का होता है सडन मूवमेंट्स, जो ऑलरेडी फॉल्ट्स हमारे पास एग्जिस्ट हो रहे हैं हमारे अर्थ में। फॉल्ट्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, उनमें जब सडन मूवमेंट आ जाती है तो उस सडन मूवमेंट को हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स कहते हैं। इसके लिए एक कंसेप्ट दिया गया है जिससे पॉसिबल मोड ऑफ ओरिजिन हम मालूम कर सकते हैं इन टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स का।
जिसको इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी कहते हैं। ये इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के मुताबिक जो रॉक्स होते हैं ये बिहेव करते हैं इलास्टिकली, जस्ट स्ट्रेच लाइक एन इलास्टिक, इलास्टिक की तरह ये लंबा हो जाते हैं। जो हमारे जो रॉक्स होते हैं इलास्टिक की तरह ये स्ट्रेच हो जाते हैं प्लास्टिकली और मेलेबल, जिसको हम कहते हैं, इनको हम डिफरेंट शेप्स कहते हैं। इट कैन बेंड, सिंपली मैं कहूँगा ये रॉक्स हमारे जो ज़मीन के अंदर है ये भी इस थ्योरी के मुताबिक इलास्टिकली स्ट्रेच हो जाते हैं, प्लास्टिकली बेंड भी हो जाते हैं डिफरेंट शेप्स में। जिस तरह से आप यहाँ टेंशन एक क्रिएट हो जाता है ड्यू टू प्रेशर, या यहाँ पे ड्यू टू कंप्रेशन रॉक्स को बीच में बल्जड हो जाते हैं। एंड देन इन इलास्टिक नेचर और प्लास्टिक नेचर की वजह से रप्चरिंग हो जाती है रॉक्स में। जिस तरह हम इलास्टिक को दूर तक खींचते हैं, लेकिन जब ऊपर से स्ट्रेस आ जाता है तो ये हमारे रॉक्स जो है इस तरह बेंड हो जाते हैं, प्लास्टिक नेचर दिखाते हैं। विद द रिजल्ट ड्यू टू हाई प्रेशर स्ट्रेस, एक्यूमुलेटिंग स्ट्रेस, ये रप्चरिंग टेक्स प्लेस। यहाँ पे जो रप्चरिंग हो जाती है, रप्चरिंग जब हो जाती है आप खुद जान जाएंगे जब स्ट्रेच करेंगे इलास्टिक को और बीच में वो कट जाएगा तो किस तरह से वो जल्दी अपनी पोजीशन फिर कोशिश करेगा होल्ड करने की। सिमिलर यहाँ पे ऐसी ही हालत हो जाती है। इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेसेस, जब स्ट्रेस चढ़ जाता है इन रॉक्स पे ऊपर से, एक्यूमुलेटिंग स्ट्रेसेस जो ऑलरेडी जो जमा होता है स्ट्रेस डिकेड्स का, उसकी वजह से क्या हो जाता है? रप्चरिंग टेक्स प्लेस। विद द रिजल्ट रप्चरिंग हो जाती है रॉक्स की, और ये रॉक्स ये रप्चरिंग होने के साथ साथ अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो थी इसकी गेन करने की कोशिश करता है। इससे पहले इसकी ये पोजीशन जब स्ट्रेचिंग हो जाती, तो जब ऊपर से एक्यूमुलेटिंग स्ट्रेस आ जाता है तो एकदम यहाँ से फ्रैक्चर हो जाता है, रप्चरिंग हो जाती है। फिर ये कोशिश करता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को होल्ड करने की। जब ये रॉक्स अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं तो इससे मूवमेंट हो जाती है, शेकिंग ऑफ अर्थ, इट कॉज शेकिंग ऑफ अर्थ। लिहाजा ये जो अर्थक्वेक होते हैं ये किस वजह से हो जाए? सडन यील्डिंग टू स्ट्रेन, उस स्ट्रेन को जिससे ये स्ट्रेच जो ऑलरेडी है यील्ड करता है, किस वजह से जो प्रोड्यूस हो जाता है ऑन रॉक्स पे जो हो जाता है, किस वजह से? एक्यूमुलेटिंग स्ट्रेस, जो पहले से ही जमा होता है, दबाव ऊपर जमा हुआ होता है, उसको उसकी वजह से जो स्ट्रेन इसमें आ जाता है, स्ट्रेचनेस आ जाती है, तो फिर ब्रेकिंग हो जाती है या रप्चरिंग हो जाती है। फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वापस लाने के लिए जब ये रप्चरिंग खत्म हो जाती है तो फिर ये कोशिश करता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को कवर करने की, होल्ड करने की। विद द रिजल्ट शेकिंग टेक्स प्लेस। और क्या हो? सच फोल्डिंग कॉज शेकिंग, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है इसकी वजह से शेकिंग हो जाती है अपनी। जो इसमें एक एग्जांपल इस तरह से भी आपको समझ आएगी कि ये डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट जो बाउंड्री होती है, जब एक दूसरे के साथ टेक्टोनिक प्लेट टकराते हैं, फिर टकराने के साथ साथ ये दूर चले जाते हैं। उस दूर भागने से डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जब टकराती है, फिर जब दूर भागने से उसको हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं, उससे जो मूवमेंट हो जाती है, शेकिंग हो जाती है, उसको टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। इसी तरह से ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, जैसे दो बाउंड्रीज इस तरह से टेक्टोनिक प्लेट जब ये मूव ऐसे करते हैं, आगे पीछे मूव करने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से जो शेकिंग हो जाती है उसको भी हम टेक्टोनिक टाइप ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं। इसी तरह से कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जैसे एक प्लेट टकराने के दौरान दूसरे प्लेट के नीचे चला गया, एक ऊपर चला गया, या यही प्लेट इसके ऊपर चढ़ गया, तो इस वजह से इनको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं। तो इस वजह से शेकिंग हो जाती है। यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल के तौर पर नॉर्मल पोजीशन अगर ये रॉक्स की होती है, जब ऊपर से प्रेशर एक्यूमुलेटिंग स्ट्रेस ये टेंशन क्रिएट करता है रॉक्स में, इस तरह से बेंडिंग हो जाती है जो मैंने आपको बताया है प्लास्टिकली। इसी तरह से बीच
दो साइड से जब कंप्रेशन रॉक्स का हो जाएगा तो उसकी वजह से भी ये मूवमेंट, जब ये ओरिजिनल पोजीशन फिर गेन करने की कोशिश करता है तो इनसे जमीन में मूवमेंट या शेकिंग वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं, उनको हम टेक्टोनिक टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स कहते हैं. सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द टेक्टोनिक टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, causes of earthquakes. One of the cause was the tectonic earthquake. So this was all about the causes of earthquakes. One of the cause was tectonic, in which we have learned the elastic rebound theory, where the rocks behave elastically and plastically. So this was regarding the today's class.